Welcome to Jigyasu online classes. In today's video, we are going to discuss about the basic concepts of integration. Integration is the inverse procedure of differentiation. It is also called as antiderivative. So, antiderivative means what? If you find the derivative of a function, you get the other function. So by the definition, the integral of that other function will be the given function. Let us discuss this with the help of some examples. We all know that derivative of sin x is equal to cos x. So integration being the antiderivative. So what will be the integration of cos x? Integral of cos x will be sin x. You can write this as integral of cos x with respect to x is equal to sin x. You also know that derivative of sin x plus 3, this is also equal to cos x, because derivative of sin x cos x plus derivative of 3 will be 0. According to the definition of integration, integral of cos x will be equal to sin x plus 3. Integral of cos x will be equal to sin x plus 3. Similarly, you can find the derivative of sin x plus 7 as cos x. According to the definition of integration, integral of cos x will be sin x plus 7. Integral of cos x will be equal to sin x plus 7. What you see in this example, integral of cos x is sin x, integral of cos x is sin x plus 3 also, integral of cos x is sin x plus 7. Integral of cos x is not a definite quantity. Integral of sin x, integral of cos x is not a definite quantity. All integrals differ by a constant. The integration in which the integral is not a definite quantity is called as indefinite integration. So in general, we write the integral of cos x with respect to x as sin x plus a constant, where c is called as constant of integration. If you differentiate sin x plus c, you will get cos x. Whatever the value of the constant, c is there. So finally, when you write the final integral of a function, so in case of indefinite integration, you always write the constant of integration plus a constant integral plus constant of integration. With the help of the derivative of the different functions, we can write the integrals of some basic functions. So let us discuss the integral of these some basic functions. We all know that derivative of cos x is equal to minus sin x. So what will be the integral of minus sin x? Being integration being the antiderivative, integral of minus sin x will be equal to cos x. So what will be the integral of sin x? It will be minus cos x. Integral of sin x, you can write minus cos x plus a constant of integration. If you find the derivative of tan x, you all know the derivative of tan x as secant square x. So with the help of definition of integration, you can write the integral of secant square x as tan x, because integration is the antiderivative. Integral of sec square x क्या मिल गया बच्चों? It is equal to tan x. Similarly, if you find the derivative of cot x, तो क्या होता है बच्चों? ये इंटीग्रल ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x. तो इंटीग्रल ऑफ cosec माइनस cosec स्क्वायर x क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू cot x. तो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल cot x आएगा, तो cosec स्क्वायर x का क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x will be equal to minus cot x plus a constant.
इन डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 upon x. So what will be the integral of 1 upon x? Integral of 1 upon x will be equal to log mod x. Why we write mod x? Because we all know that log is defined only for the positive real numbers. So to make sure this is a positive real number, we apply modulus. Okay, so let us discuss some more examples of integration. You all know that derivative of e की power x कितना होता है? e की power x होता है. तो क्या आ जाएगा? Integral of e की power x. What will be the integral of e की power x? It is e की power x plus a constant. Okay. So अब आपका एक बेसिक रिजल्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n आपने स्टडी कर रखा था, nx to the power n minus 1. Similarly, integration of x to the power n is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus a constant. Okay, this formula is true for all values of n, except minus 1. All values of n के लिए true है except minus 1. Why it is not true for n is equal to minus 1? अगर आप n is equal to minus 1 लोगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, which is not possible. Undefined, not defined हो जाएगा. तो all values of n के लिए true है except minus 1. Okay, तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, अगर आपसे कोई पूछता है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स बताओ, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स, सो root x can be written as x to the power half dx. Apply the formula x to the power n, integral of x to the power n. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x to the power half plus 1 upon half plus 1 plus a constant. Simplify this, you will get x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 plus a constant. Finally, you can write this as 2 by 3 x की पावर 3 by 2 प्लस अ कांस्टेंट. नेक्स्ट, अगर आपको इंटीग्रल ऑफ dx पता करना है, इंटीग्रल ऑफ dx, you can write this as 1 into dx. 1 means 1 can be written as x to the power 0. That formula, integral of x to the power n, is applicable for all values of n except minus 1. minus 1 के अलावा कोई भी नंबर है पावर में तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो. x टू द पावर 0 के लिए भी ये फार्मूला यूज कर सकते हो. क्या आएगा? x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट. फाइनली x टू द पावर 1 that is x. ये क्या आ जाएगा? x प्लस अ कांस्टेंट. What you got the value of integral of dx? Integral of dx comes out to be x. तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ dt क्या आएगा? t आएगा. इंटीग्रल ऑफ डी थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा. इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या आएगा? यू आएगा. आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन मिलेगी तो आप इसको डायरेक्टली लिख दिया करेंगे इंटीग्रल ऑफ dx एज x. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द इनवर्स प्रोसीजर ऑफ ईच अदर. तो आप देखो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इनवर्स ऑपरेटर्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा? यहां जो रिजल्ट है वही आंसर मिला करेगा. इंटीग्रल ऑफ dt क्या मिलेगा? t. इंटीग्रल ऑफ डी थीटा क्या मिलेगा? थीटा. इंटीग्रल ऑफ डी यू क्या मिलेगा? यू. अब मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं. ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स पहले आपको लर्न करना है. कुछ इंटीग्रल्स के डेरिवेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस में. तो अब आप लोग देखिए, आप नोट कर सकते हो, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, integral of cos x, integral of tan x, integral of cot x, integral of secant x, इंटीग्रल ऑफ cosec x. ये क्या होंगे? ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स आप पहले नोट कर लीजिए. इंटीग्रल ऑफ sin x होता है बच्चों माइनस cos x प्लस अ कांस्टेंट. इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है? sin x प्लस अ कांस्टेंट.
इंटीग्रल ऑफ tan x कैसे आता है हम लोग अभी इसके डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये फॉर्मूला नोट करिए। इंटीग्रल ऑफ tan x होता है log मॉडुलस ऑफ secant x, log sec x। ओके, इंटीग्रल ऑफ cot x क्या होता है log sin x, log mod sin x पढ़ेंगे आप। इंटीग्रल ऑफ secant x क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये होता है log secant x प्लस tan x। और लास्ट रिजल्ट इंटीग्रल ऑफ cosec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ cosec x होता है बच्चों log मॉडुलस cosec x minus cot x plus a constant। Note down these all 6 integrals। ये all 6 trigonometric functions के आपको अभी इंटीग्रल मैंने बता दिया है। क्वेश्चंस में हम लोग फ्रीक्वेंटली इनको यूज कर रहे होंगे, आप ये नोट कर सकते हैं। इंटीग्रल ऑफ sin x, इंटीग्रल ऑफ cos x, इंटीग्रल ऑफ tan x, cot x, secant x एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको अगर मान लो इन प्लेस ऑफ x लीनियर फंक्शन ऑफ x हो तो आप सिमिलर फार्मूला यूज कर सकते हो, सिमिलर फार्मूला यूज कर सकते हो। वो आता कैसे है उसका डिस्कशन हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जब डिस्कस करेंगे वहां करेंगे। अभी आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करना सीख लेना है। जैसे आपको बताया गया है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट इफ इन प्लेस ऑफ x you are given लीनियर फंक्शन ऑफ x और उसका फार्मूला उसका डायरेक्ट इंटीग्रल पता करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रल पता करना है ax प्लस b टू द पावर n, इंटीग्रल पता करना है ax प्लस b टू द पावर n। क्या है यहां पर डिफरेंस, x टू द पावर n का फार्मूला पता है और यहां किसका पता करना है इंटीग्रल ax प्लस b की पावर n इन प्लेस ऑफ x लीनियर फंक्शन ऑफ x। तो क्या करते हैं आप सिमिलर फार्मूला अप्लाई करिए, क्या आ जाएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइड करना है बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर फंक्शन ऑफ x। और वो क्या आएगा x का जो कोफिशिएंट है वही आएगा, तो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, ये ध्यान देना है आपको। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है 2x प्लस 3 की पावर 7 का इंटीग्रल बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये ओनली फॉर लीनियर इन प्लेस ऑफ x अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x है देन ओनली यू हैव टू अप्लाई द सिमिलर फॉर्मूला। 2x प्लस 3 की पावर 7 है, ये सेम फॉर्मूला यूज करिए, क्या आएगा 2x प्लस 3 की पावर 7 प्लस 1 8 अपॉन 8 1 अपॉन इंटीग्रेट सॉरी डिवाइड करो किससे x के कोफिशिएंट से, ये मत भूल जाना, आपको डिवाइड करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस लीनियर, ठीक है। तो x का जो कोफिशिएंट है उससे फाइनली आप डिवाइड करो। बहुत से रिजल्ट्स आप देख सकते हो, अगर आपको बताया गया है इंटीग्रल ऑफ साइन x, इंटीग्रल ऑफ साइन x क्या होता है माइनस कॉस x होता है। अगर आप इफ यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस 3 क्या आ गया बच्चों इन प्लेस ऑफ x लीनियर फंक्शन ऑफ x आ गया 2x प्लस 3, तो क्या करना है, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करो। साइन का क्या होता है, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन 2x प्लस 3 का क्या हो जाएगा माइनस कॉस जो इसके थीटा में है, जो इसका एंगल है वही इसका भी एंगल आएगा 2x प्लस 3 अपॉन क्या x का कोफिशिएंट, तो क्या आएगा ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस डायरेक्टली। अब जैसे आपसे कोई पूछता है इंटीग्रल ऑफ साइन 3x बताओ, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x, तो क्या लिखोगे आप, अब साइन का तो पता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, साइन 3x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। अगर आपसे कोई कहता है भाई इंटीग्रल ऑफ साइन 2x बताओ, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस 2x बाई 2। जितने भी आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है in all those if in place of x there is a linear function of x, तो आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रल ऑफ e की पावर x पता है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x क्या होता है e की पावर x होता है, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x e की पावर x है। इफ यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x, तो क्या लिखोगे इन प्लेस ऑफ x
लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो e की पावर 2x का इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। e की पावर 3x प्लस 1 का इंटीग्रल लिखना है, क्या होगा बच्चों, e की पावर 3x प्लस 1 इन प्लेस ऑफ x लीनियर फंक्शन ऑफ x आ गया है, इट विल बी e की पावर 3x प्लस 1 अपॉन x का जो कोफिशिएंट है। ये ध्यान देना, ये अगर x की जगह में लीनियर फंक्शन ऑफ x है, देन ओनली यू कैन राइट दिस रिजल्ट, डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अगर आपसे कोई कहता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या है, अभी बताया गया था 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या था, log x। क्यों, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log x। 1 अपॉन एक्स का पता है, if you have to find integral of 1 upon ax plus b, 1 upon ax plus b, क्या मैंने बताया अभी, इन प्लेस ऑफ x अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x है तो सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 1 अपॉन ax प्लस b का क्या हो जाएगा, log ax प्लस b, मॉडुलस में ही लिखना है, अपॉन x का कोफिशिएंट, तो ये आपको 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रल दे देगा। ओके, अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस द इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको मैंने ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स बता दिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो आपको कुछ तो डेफिनेशन से पता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ tan x पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है secant स्क्वायर x। सो इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x आ जाएगा tan x प्लस अ कांस्टेंट। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल तो आपको डेफिनेशन से पता चल गया। अब जैसे सिमिलरली आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cot x होगा, तो cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। तो secant स्क्वायर x का इंटीग्रल और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल तो बाय डेफिनेशन आपको पता चल गया। हमें क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर के इंटीग्रल पता करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो तो आपको पता ही है, एक काम करते हैं, अब हम लोग सिंपली आप पता करो tan स्क्वायर x का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x, secant स्क्वायर x का आपको इंटीग्रल पता है, एक आइडेंटिटी भी पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, secant स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप, you can write tan square x as secant square x minus 1. Let us write, अच्छा जब कभी भी आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करो ना, so let us denote the integral equal to I. अब क्या करोगे आप, tan square x को लिखने वाले हम लोग secant square x minus 1, secant square x minus 1। अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec square x dx minus 1 dx, इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल आप जानते हो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या है, tan x, तो आप लिखो इसको tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ dx, तो अभी डिस्कस किया था, ये माइनस x है, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एट द एंड ऑफ द इंटीग्रेशन। जब सारे इंटीग्रल्स आप पता कर चुके हो तो देन यू हैव टू राइट अ कांस्टेंट ऑफ प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल पता था, cosec स्क्वायर x का भी पता था, हमने किसका पता कर लिया, tan स्क्वायर x का। सिमिलरली यू कैन फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर x, अगेन you know an identity, 1 plus cot square x is equal to cosec square x. So cot square x can be written as cosec square x minus 1, cot square x can be written as cosec square x minus 1। देन फिर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1। ये क्या आ जाएगा, ये आएगा माइनस cot x माइनस x प्लस अ कांस्टेंट। अब आपको देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल पता था, cosec स्क्वायर x का भी पता था, विद द हेल्प ऑफ दीज हमने tan स्क्वायर x का इंटीग्रल पता कर लिया, cot स्क्वायर x का इंटीग्रल पता कर लिया। अब हमारे दो और बचते हैं, कौन से, sin स्क्वायर x
or cos square x. So how to find the integral of sin square x? Integral of sin square x. अब बच्चों sin 2x का इंटीग्रल, sin 3x का इंटीग्रल, sin 4x का इंटीग्रल, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका फ्रीक्वेंटली पूरी मैथमेटिक्स में यूज होता है। व्हाट इज दैट? sin square x can be written as 1 minus cos 2x by 2। ये स्क्वायर हट जाता है, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। sin square x क्या है? 1 minus cos 2x by 2। आप इसको नोट कर लो, बहुत यूज होता है। सिमिलरली cos square x का एक फॉर्मूला है 1 plus cos 2x by 2, ये भी बहुत यूज होता है। इन दोनों रिजल्ट्स को आप नोट कर लीजिए। अब देखो, आपको sin स्क्वायर x का इंटीग्रल पता करना है। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट sin स्क्वायर x एज 1 minus cos 2x by 2। sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 minus cos 2x by 2। अब क्या आ जाएगा ये? 1 by 2, 1 minus cos 2x dx। अब अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 by 2 1 dx माइनस 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। अब बच्चों, अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? x होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या होता है? अभी बताया था, cos का इंटीग्रल क्या है? sin x। तो cos 2x का क्या हो जाएगा? sin 2x by 2, sin 2x by 2, finally plus a constant of integration. In this way we can find the integral of sin square x. Similarly we can find the integral of cos square x. Integral of cos square x, what is that formula? cos square x का फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, क्या होता है? 1 plus cos 2x, 1 plus cos 2x by 2। so then क्या हो गया? स्क्वायर हट गया, अब वो cos 2x में कन्वर्ट हो गया। cos 2x का इंटीग्रल तो हमें पता है, क्या लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो 1 by 2 1 plus cos 2x dx। ये आपको फॉर्मूला पता रहेगा, k into of इंटीग्रल ऑफ f of x is equal to k into इंटीग्रल ऑफ f of x। ये हम लोग इन बिटवीन द क्वेश्चन यूज करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा, इट कैन बी रिटन एज 1 by 2 1 dx plus 1 by 2 cos 2x dx। नेक्स्ट 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ 1 x होता है प्लस 1 by 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x। इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या है? दैट इज sin 2x by 2 plus a constant। So in this video we discussed about the basic meaning or basic concepts of integration and some important integrals. In the next video we will discuss some more examples of integrals and types of integration, methods of integration. So keep watching the videos. We will continuously